Hello everyone, today we are going to cover chapter 11 appointment and qualification of director from section 149 to 172. This whole chapter contains section from 149 to section 172. Today we are going to cover section 149 from subsection 1 to subsection 13. It's a quite a long section, so we are going to cover all the subsections in the single video. So it is important and quite tedious and quite tricky to get through it, but with this notes I would like to give you a quick recap of this. So let's hit it. This video going to be a quite lengthy one, minimum 5 to 10 minutes videos. So let's get through this. So section 149 subsection 1 talks about every company's BOD should be individuals as directors. It means सारी companies के board of directors जो है वो individual ही होने चाहिए, मतलब directors company या body corporate नहीं हो सकते. फिर आता है clause A and clause B, which talks about minimum and maximum number of directors. OPC में 1, private में 2, public में 3 and maximum should be 15. And first proviso talks about a company can appoint more than 15 directors by passing SR in GM, means special resolution in general meeting. फिर clause B, it means this, and the first proviso not applicable to government company and section 8 company only if they are not committed default in filing financial statement and annual return. Financial statement under 137 and annual return in under section 92. This all means both should be filed, means financial statement and annual return both should be filed. If either of one not filed, then this proviso will not applicable. Then second proviso and also there is regulation 17 SEBI LODR regulation 2015 talks about top 2000 listed company में minimum 6 directors होने चाहिए, and this top 2000 listed company considered किए जाएंगे market cap के according. Now the second provision talks about the women directors. At least one women directors होनी चाहिए board of directors में. किस में होनी चाहिए? Listed company में. obvious सी बात है, listed company में ये proviso applicable होगा. और किस पे applicable होगा? Unlisted public company. UPC stands for unlisted public company whose paid up share capital is more than or equals to 100 crore और unlisted public company whose turnover is more than or equals to 300 crore. इनको one women director रखना होगा within 6 months from the date of incorporation. उनकी company के incorporation के 6 months के अंदर उनको एक वुमेन डायरेक्टर रखना होगा. वुमेन डायरेक्टर की कैजुअल वैकेंसी कब फिल की जाएगी? इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और विद इन 3 months विच एवर इज लेटर. वुमेन डायरेक्टर की कैजुअल वैकेंसी को उस टाइम फिलअप किया जाएगा. और LODR रेगुलेशन के अकॉर्डिंग टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी को मिनिमम 1 इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर रखना पड़ेगा. अब बात करते हैं सेक्शन 149 सबसेक्शन 2. ये एक ट्रांजिशनल प्रोविजन है. इट स्टेट्स दैट एवरी कंपनी टू कंप्लाई सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 विद इन 1 year. उनको जब से ये सेक्शंस एप्लीकेबल हुआ है उसके 1 ईयर के अंदर सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा. अब टॉक्स अबाउट सेक्शन 149 सबसेक्शन 3. इट टॉक्स अबाउट रेसिडेंट डायरेक्टर. It states every companies should have a resident director, at least one director. एक मिनिमम एक डायरेक्टर होना चाहिए जो रेसिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए जो स्टेड इन इंडिया, जो इंडिया में रहा हो मिनिमम 182 days ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर में वो 182 days रहा हो. प्रोविजो आया है इनकॉर्पोरेशन, और अगर हमारी इनकॉर्पोरेशन किसी और डेट से हुई है तो उस इनकॉर्पोरेशन डेट्स और ईयर एंड के अकॉर्डिंग ही उसको प्रोपोर्शनली हम ये डेज काउंट करेंगे कि कितने डेज उसको रहना चाहिए इन फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर. IFSC कंपनी में ये अप्लाई होता है अदर देन द फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन. IFSC कंपनी को ये एग्जाम्पशन दिया गया है जैसे कि ये फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर से हमें ये क्या कहते हैं रेसिडेंट डायरेक्टर के प्रोविजंस को एप्लीकेबल करना पड़ेगा. IFSC कंपनी के लिए एक छूट दी गई है कि वो अदर देन फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम कॉर्पोरेशन के अलावा कहीं दूसरे फाइनेंशियल ईयर से वो इसको इनकॉर्पोरेट कर सकता है. Now talks about section 149 subsection 4. It talks about independent directors. Independent directors किसको रखना पड़ेगा इन लिस्टेड कंपनी whose मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हमें कितने रखने पड़ेंगे? इसकी कैजुअल वैकेंसी सेम एज वुमेन डायरेक्टर्स के थ्रू फिलअप की जाती है. इट मीन इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 months विच एवर इज लेटर. तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हमें कितने रखने पड़ेंगे? लिस्टेड कंपनी में मोर देन और इक्वल्स टू 1/3 ऑफ द बोर्ड मीटिंग और एनी फ्रैक्शन राउंडेड ऑफ टू 1. मतलब लिस्टेड कंपनीज को 1/3 ऑफ द बोर्ड ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अगर मान लीजिए वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमारे 6 हैं तो उसका 1/3 हुआ 2. तो 2 शुड बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन लिस्टेड कंपनी. एंड अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन 10 crore, टर्नओवर मोर देन और इक्वल्स टू 100 crore एंड लोन डिपॉजिट बोरिंग एंड शुड बी मोर देन 50 crore. तो इनको एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रखने पड़ेंगे. एग्जेम्प्टेड है. रूल शैड नॉट अप्लाई ऑन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हु इज जॉइंट वेंचर, होली सब्सिडरी एंड डोरमेंट कंपनी. ये सेक्शन 149 सबसेक्शन 4 उन पर अप्लाई नहीं, उन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी पर अप्लाई नहीं करेगा जो एक जॉइंट वेंचर, होली सब्सिडरी और डोरमेंट कंपनी हो.
If any other section requires appointment of higher number of independent director, then appoint such higher number of directors. मतलब ये सेक्शन हमें प्रोवाइड करता है कि अगर कोई और सेक्शन हमें हायर, जैसे कि ऑडिट कमिटीज़ में अगर हायर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट है तो हम वो सेक्शन को फॉलो करेंगे. अगर इफ एनी अदर सेक्शन रिक्वायर्स अपॉइंटमेंट ऑफ हायर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, देन अपॉइंट सच अ हायर नंबर ऑफ directors. Example, audit committee. Section 149 subsection 5 is a transitional provision which states that existing company to comply section 149 subsection 1 within 1 year from the commencement of this act. There is this something which is very important to know, that if unlisted public company ceases to attract any limits for 3 consecutive years, then requirement of independent director shall not remain unless it attracts any of the limits again. It means अगर तीन लगातार सालों तक अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की लिमिट्स को वो अगर नहीं टच कर रहा है कोई भी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, तो उसको रिक्वायरमेंट नहीं है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहने की तब तक जब तक वो जब तक वो उस लिमिट्स को कभी टच ना करे. Now the most important subsection of section 149 is subsection 6. It is a quite lengthy one, but the most important one. Now let's try to grasp it. Section 149 subsection 6 describe the qualification of the independent directors. It means who can be an independent director. So an independent director is director other than the MD, whole time director or a nominee director. This line is important. Independent director is a director other than MD, WTD and nominee director. Now it is described under subclause A, B, C, D, E and F. So subclause A defines subclause कह रहे हैं, clause section 149 subsection C and clause A, B, C, D, E and F. So clause A defines opinion of board of directors. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अगर कोई कंपनी है तो उसकी ओपिनियन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की ओपिनियन में, अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है तो मिनिस्ट्री इन चार्ज के ओपिनियन में वो पर्सन इंटीग्रिटी, एबिलिटी ऑफ स्टैंडिंग प्लस एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए. इज और वॉज, ना है ना वो था, प्रमोटर ऑफ इट्स कंपनी और होल्डिंग और ऑफ इट्स होल्डिंग सब्सिडरी इन एसोसिएट्स एंड नॉट रिलेटेड टू प्रमोटर ऑफ डायरेक्टर से रिलेटेड भी होना चाहिए ऑफ द सेम कंपनी और इट्स होल्डिंग सब्सिडरी एंड एसोसिएट्स. हैड और हैज़ नो pecuniary relationship. It means financial relationship नहीं होना चाहिए other than the remuneration को छोड़ के, और other than the transaction up to 10% of the total income is allowed during 2 immediately preceding financial year और during current financial year. एग्जेम्पशन गवर्नमेंट कंपनी को मिला है सेक्शन 149 सबसेक्शन सी और क्लॉज सी. ये अप्लाई नहीं होगा गवर्नमेंट कंपनी को. इट मीन्स ये पेक्यूनरी रिलेशनशिप वाला क्लॉज गवर्नमेंट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होगा. अब आते हैं क्लॉज डी में. वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नन ऑफ हुज रिलेटिव, उसका रिलेटिव होल्डिंग एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन कंपनी और इट्स होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट्स कैन होल्ड अप टू फेस वैल्यू ऑफ 50 लाख. इसका ये दिया है कि पहले तो वो कोई सिक्योरिटी को होल्ड नहीं कर रहा हो, ना ही कंपनी में ना ही उसकी होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट में, लेकिन वो होल्ड कर सकता है अप टू फेस वैल्यू ऑफ 50 लाख ऑफ कंपनी और 2% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल विच एवर इज हायर. फेस वैल्यू ऑफ 50 लाख ये कंपनी का होना चाहिए और 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट ऑल टुगेदर मिला के 2% तक वो कर सकता है ड्यूरिंग करेंट फाइनेंशियल ईयर और इमीडिएटली प्रीसीडिंग टू फाइनेंशियल ईयर. इंडेटेड नहीं होना चाहिए टू द कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट और प्रमोटर और डायरेक्टर इमीडिएटली प्रीसीडिंग टू फाइनेंशियल ईयर. गारंटी टू थर्ड पर्सन नहीं देना चाहिए टू कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट प्रमोटर डायरेक्टर एक्सीडिंग 50 लाख के ऊपर की गारंटी नहीं देनी चाहिए इमीडिएटली प्रीसीडिंग टू फाइनेंशियल ईयर और ड्यूरिंग करेंट फाइनेंशियल ईयर. ये आपका हमेशा सेम होगा, इमीडिएटली प्रीसीडिंग टू फाइनेंशियल ईयर और ड्यूरिंग करेंट फाइनेंशियल ईयर. Pecuniary transaction or relationship with company holding subsidiary or associates amount to 2% of more of gross turnover or total income singly or with combination of 1, 2, 3. It means this. मतलब security और interest, indebted और guarantee इन तीनों को मिला के वो 2% of more of gross turnover और total income singly with और combination होना चाहिए. अब आता है क्लॉज ई. हु नाइदर हिमसेल्फ और नॉर एनी ऑफ हिज रिलेटिव, वो ना ही खुद और ना ही उसके कोई रिलेटिव के द्वारा, वो ना ही उसका कोई रिलेटिव KMP और एम्प्लॉय हो ऑफ कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर. यहाँ पे 3 फाइनेंशियल ईयर है, बाकी सब जगह 2 फाइनेंशियल ईयर था. ना ही वो KMP हो मतलब कि मैनेजरियल पर्सनल और एम्प्लॉय हो ऑफ कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एंड एसोसिएट इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर. प्रोविजो है रिलेटिव कैन बी एन एम्प्लॉय. रिलेटिव एक एम्प्लॉय हो सकता है, बाकी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और उसका रिलेटिव ये सब नहीं हो सकता. इज और हैज़ बीन एन एम्प्लॉय प्रोप्राइटर पार्टनर इमीडिएटली प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर. वो ना ही एम्प्लॉय हो, प्रोप्राइटर हो और पार्टनर हो 3 फाइनेंशियल ईयर के लिए. फर्म
किसका नहीं होना चाहिए? फर्म ऑफ ऑडिटर्स, CS इन प्रैक्टिस और CA कॉस्ट ऑडिटर कंडक्टेड ऑडिट ऑफ दैट कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एंड एसोसिएट। इट मीन्स कि वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और उसका रिलेटिव एम्प्लॉय, प्रोप्राइटर और पार्टनर नहीं हो इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर ऑफ किसका? फर्म ऑफ ऑडिटर, CS इन प्रैक्टिस और कॉस्ट ऑडिटर जिसने कंडक्ट किया हो ऑडिट उस कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट्स का। लीगल फर्म हुज ट्रांजेक्शन विद कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एंड एसोसिएट इज 10% और मोर द ग्रॉस टर्नओवर। इट मीन्स उस लीगल फर्म का एम्प्लॉय, प्रोप्राइटर और पार्टनर नहीं होना चाहिए जिसका ट्रांजैक्शन उस कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट से 10% और मोर ग्रॉस टर्नओवर का हो। हमारा क्लॉज ई ही चल रहा है। होल्ड्स टुगेदर, ना ही वो इंडिपेंडेंट होल्ड्स टुगेदर विथ रिलेटिव 2% और मोर ऑफ वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी। वो इंडिपेंडेंट और उसका रिलेटिव मिलके 2% और मोर वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी का नहीं लेना चाहिए। इट मीन्स मेरा कंपनी NPO को अगर डोनेशन कर रहा है 25% ऑफ मोर, मतलब जिस NPO को हमारा कंपनी डोनेशन दे रहा हो 25% और मोर का, और वो NPO होल्ड कर रही हो 2% और मोर टोटल वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी का, अगर हमारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो, उसका रिलेटिव CEO और डायरेक्टर हो, तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता और कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी, एसोसिएट, प्रमोटर और डायरेक्टर। Possession of qualification, clause F. This is the last one of section 149 subsection 6, clause F. Possession of qualification, कि उसकी qualification क्या होनी चाहिए? Skill in any one or more fields of finance, law, marketing, technology, accounts, administration, corporate governance or in any other field related to that company. उस कंपनी से रिलेटेड कोई भी उसको एक स्किल की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए। नाउ अब छोटे-छोटे सेक्शंस हैं जो तुरंत ही कंप्लीट हो जाएंगे। सेक्शन 149 सबसेक्शन 7 टॉक्स अबाउट डिक्लेरेशन बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को डिक्लेरेशन कभी नहीं पड़ती है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, जिस फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में जो उसकी पहली बोर्ड मीटिंग हो एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एंड उसको फिर कब देनी पड़ेगी? फर्स्ट बोर्ड मीटिंग इन एवरी फाइनेंशियल ईयर। हर फाइनेंशियल ईयर की फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में उसको अपनी डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। सर्कमस्टेंसेस which may affect the status of his independence declare in immediate next board meeting। उस circumstances में in which जहाँ उसकी independence affect हो रही हो उसको declare करना पड़ेगा immediate next board meeting में। Now section 149 subsection 8 describe about the code of conduct of independent directors given in schedule 4। schedule 4 में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में दिया गया है। अपहोल्ड द एथिकल स्टैंडर्ड्स, हाई लेवल ऑफ इंटीग्रिटी, अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड एक्सरसाइज हिज ड्यूटी बोना फाइडली टू द बेस्ट ऑफ हिज इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। ये शेड्यूल 4 में दिया गया है ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। सेक्शन 149 सबसेक्शन 9 डिफाइंस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नॉट इंटाइटल्ड टू स्टॉक ऑप्शन। स्टॉक ऑप्शंस के लिए वो एलिजिबल नहीं होगा बट कैन रिसीव रेम्यूनरेशन बाय वे ऑफ फीस एंड रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम फॉर अटेंडिंग द बोर्ड मीटिंग। उसको स्टॉक ऑप्शंस के बेनिफिट नहीं मिलेंगे बट वो रेम्यूनरेशन रिसीव कर सकता है बाय वे ऑफ फीस एंड रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस। जो भी उसको बोर्ड मीटिंग अटेंड करने में जो भी उसके एक्सपेंस हुए हैं उसको रिम्बर्समेंट मिल जाएगी। नाउ सेक्शन 149 सबसेक्शन 10 इट्स टॉक्स अबाउट द टेन्योर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर अ टर्म ऑफ अप टू 5 consecutive years एंड रीअपॉइंटेड फॉर अनदर 5 consecutive years बाय पासिंग SRNG। पहले तो वो 5 साल के लिए उसकी टेन्योर होगी और वो नेक्स्ट 5 years के लिए भी अपॉइंट हो सकता है, रीअपॉइंट हो सकता है बाय पासिंग SRNGM। Now section 149 subsection 11 talks about only 2 consecutive terms and then eligible for reappointment। देखो सबसेक्शन 10 तो बताता है कि वो 5 साल और रीअपॉइंट हो सकता है अनदर 5 years के लिए बाय पासिंग SRNGM। सबसेक्शन 11 टॉक्स अबाउट कि वो 2 consecutive टर्म्स, इट मीन्स 5 और 5 years, 2 consecutive टर्म्स के लिए अगर वो एलिजिबल हो चुका है तो उसके बाद उसको 3 years का कूलिंग पीरियड लेना पड़ेगा। 3 years के बाद ही वो दोबारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए अपॉइंट हो सकता है। ओनली 2 consecutive टर्म एंड देन एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट only after 2 consecutive term and then eligible for appointment after 3 years of cooling period provision। During those 3 years he should not be associated with company in any capacity directly or indirectly। section 149 subsection 12 section 149 subsection 12 talks about the liability of independent director। independent director and non-executive director who is not promoter or KMP लाइबल ओनली फॉर दोज एक्ट, उन एक्ट्स के लिए लाइबल होंगे ऑफ ओमिशन और कमीशन हिज नॉलेज और बोर्ड प्रोसेस। कोई ओमिशन और कमीशन किया हो जो उसकी नॉलेज में हो और बोर्ड प्रोसेस में हुआ हो। गेव कंसेंट और कन्विंस फॉर फेल टू एक्ट डिलिजेंटली, उन्होंने कंसेंट दिया हो, कन्विंस साथ में मिलके वो फेल किया हो टू एक्ट डिलिजेंटली, फेल टू एक्ट डिलिजेंटली। नाउ द लास्ट section 149 subsection 13 independent director not liable to retire by rotation under section 152 subsection 6 and subsection 7। वो रिटायरमेंट बाय रोटेशंस के लिए लाइबल नहीं होता है। कुछ नोट्स हैं। सेक्शन 149
Subsection 4 to subsection 13 shall not apply on section 8 company and IFSC companies provided that section 8 company not defaulted in filing financial statement and annual return. So this is all about the huge section 149 from subsection 1 to subsection 13.